नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं पंकज खजूरिया। मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षाओं के परिणाम घोषित हुए और इस परिणाम में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि पहली मर्तबा 10वीं की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो हुई, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई कोरोना के चलते। और कोरोना के चलते ही 10वीं के बोर्ड की जो लिखित परीक्षा थी वो स्थगित करनी पड़ी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। जम्मू में भी जो बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, मेधावी छात्र जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा किया और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। इसी बीच आज हम स्कूल से उनके स्टाफ से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहना है उनका इस रिज़ल्ट के बारे में। वी विल टॉक टू द चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू, श्री उमेश शर्मा जी। Umesh Sharma ji have been serving the prestigious Educational Institute of Jammu, Delhi Public School for the last 20 years, and let's discuss what he has been saying on this result. Sir, first of all, I would like to say congratulations for the best result in 10th class. Thank you very much, Pankaj ji. Very good evening to all. First of all, let me congratulate all the parents and all the stakeholders for excellent class 10th board result, which was declared yesterday. And as far as Delhi Public School is concerned, there were around 331 students who appeared in class 10th this year, and all 331 they passed with flying colors. The first position was taken by Madam Ashna Mahajan from class 10th, and she scored around 96.8%. Yes, to be very precise, it was 96.8%. Then we have around 72 students who got more than 90% marks in this exam. There were around 117 students who were placed between 80% to 89%, and there were 81 students who were placed between 70 to 79%. And we had 317 first divisions, and we had 231 distinctions. So this was a tremendous result, and we lived up to the reputation of Delhi Public School Jammu. And I must convey my heartiest thanks to the management of Delhi Public School Jammu, Maharaj Kumar Shri Azad Shatru Singh ji, Kumrani Madam Ritu Singh ji, Shri S.S. Sodhi sir, our principal Madam Ruchi Chhabra, and the entire staff members who worked really hard for this result. And of course, it was the contribution of the students also. They worked very hard. And let me explain one thing. The children here who appeared, all the children who appeared in the entire country for this class 10th board examination, they were under a lot of stress. And as far as my knowledge is concerned, I know quite a few children who lost their close relatives just before the commencement of the exams. So you see, we can understand what the pressure was on the children. And these children, they did fairly well. Hats off to these children. And we had 100% result. Do you think there have a little bit challenge for schools, for students and for their parents to manage their studies, to manage their consistencies in their studies, because this is the first time when they are going through online mode, not offline mode? Pankaj ji, actually, we in Delhi Public School Jammu, we prepare our students to take up these challenges. And yes, the students, they were very apprehensive whether they'll be appearing through board or they'll be appearing through online mode through through the school. The children, their apprehension was to, as far as my knowledge was concerned, it was right to some extent. But when the board decided to call off these exams, and they formulated a policy to compile the results, and when these results were compiled, the marks were awarded to these children. They were on when the children appeared for online mode. Now, we have been conducting various exams in the school. We conduct formative assessment exams. We conduct half-yearlies. Then in class 10th and 12th, we in Delhi Public School, we conduct 2 pre-boards for children. And we also conducted one learning gap assessment test, which was in fact for the first time, which we conducted, because these exams were, the name itself suggests us this is learning gap assessment. So what is learning gap assessment? This is a very new thing which we are learning right now. There is a learning gap assessment by DPS, Delhi Public School. What is this learning gap assessment? You see, we formulated the assignments and we formulated the question paper in such a way that if the children had any doubts, any queries,
they could consult their teachers. Teachers were available online, offline also. We conducted some classes when the pandemic was slightly on the lesser scale. We got some children to school in the month of December and January. Their doubts were cleared, and as far as class 12th is concerned, their practical examinations were conducted in offline mode. We had the externals coming from outside, and those were conducted in adherence to the CBSE norms. And this LGA examinations which were conducted, it was just another practice for the children. इसी समय मैं हूँ जोधामल पब्लिक स्कूल जम्मू में, और जहाँ का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। अभी हम बात करेंगे वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर दीप खरे जी से। सर, सबसे पहले जो आज रिज़ल्ट आया है 10वीं का, हमने देखा 12वीं कक्षा में आपके स्कूल ने काफ़ी अच्छा किया था और आज भी काफ़ी अच्छा किया, इसकी बहुत सारी मुबारकबाद हो। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज के रिज़ल्ट के ऊपर आप क्या कहेंगे? आज का रिज़ल्ट बच्चों के काफ़ी कठिन परिश्रम का असर है। हमारे बच्चों का लास्ट ईयर का रिज़ल्ट जो था उससे बेस बन के रिज़ल्ट निकला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर इन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए होते तो शायद इससे भी बेहतर परसेंटेज लेके आते, लेकिन परिस्थितियों के सामने हम सब विवश हैं और मुझे लगता है कि लगभग जो ये रिज़र्व करते हैं उनको मिल गया है। हाँ, कुछ बहुत बड़े जो हमारे टॉपर्स हैं वो इससे भी अच्छा कर सकते थे। सर, अब की बार जो ड्यू टू पेंडेमिक जो रिज़ल्ट है इंटरनल असेसमेंट के बेस पे रिज़ल्ट बनाया गया है, इसमें कुछ खास जो नियम थे वो क्या थे, कुछ बताएंगे आप भी उसको? हर स्कूल को उनके पिछले 3 सालों के बोर्ड के रिज़ल्ट को बेस बनाया गया है। क्योंकि हमारा स्कूल आमतौर पे अच्छा करता रहा है, हिस्टोरिकली हमारा डेटा बहुत अच्छा था, तो हमारे बच्चों का एवरेज रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। उन स्कूलों में जिन्होंने नया काम शुरू किया था या जिनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं थे, उनके अगर बच्चे अच्छे थे फिर भी उनको थोड़ा नुकसान हुआ होगा। लेकिन ये बात सच है कि बच्चों के बिना एग्ज़ाम लिए उनको रिज़ल्ट देना थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है, क्योंकि हम सही जजमेंट नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इस परिस्थिति में जो CBSE और स्कूल और अध्यापक जो बेस्ट कर सकते थे वो बच्चों ने किया है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम इन बच्चों ने इस पूरे साल भर खुश रह के किया है। ये बच्चे पढ़ाई कल भी कर सकते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना, इस बड़ी गंभीर समस्या से डील करना, अपने आप को खुश रखना, स्वस्थ रखना, ये बड़ा एग्ज़ाम मैं मानता हूँ जिन्होंने पास किया है। हम बात करेंगे केसी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अमनेंद्र मिश्रा जी से। मिश्रा सर, सबसे पहले आपको आपके स्कूल ने बड़ा अच्छा किया 10th के रिज़ल्ट में, इसके लिए बहुत सारी मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे? अब की बार जो 20-21 की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा चैलेंज जो बच्चों के दिमाग में, माता पिता के दिमाग में, जनरल पब्लिक के दिमाग में ये आता है, क्लासेस हुई नहीं, ऑनलाइन क्लासेस उनको अटेंड करनी पड़ी और एग्ज़ाम भी जो है रिटर्न में नहीं हुआ जो उमूमन होता है, तो उनका रिज़ल्ट आया। इस पे आपका क्या राय रहेगी? मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि रिटर्न चीज़ें नहीं हुई है, रिटर्न ही हुए हैं, भले ही वो ऑनलाइन हुआ है। तो मतलब ये कहना सही मतलब गलत होगा कि रिटर्न नहीं हुआ और ऐसे रिजल्ट आ गया। और हमने खाली रिटर्न ऑनलाइन नहीं किया, हमने ऑफलाइन भी किया। जैसे हमारे विहान ने भी बताया कि हमने प्री बोर्ड भी लिया, बट इसमें ये है कि कुछ लोग जो डरे हुए थे वो नहीं आए, बट जो कंसर्न और अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स हैं तो वो ज़रूर बच्चों को भेजे थे। आप क्या कहेंगे कि बच्चों की जो कंसिस्टेंसी है वो काम आई, कि कुछ बच्चे हमने ऐसा देखा कि जो लास्ट में अपने एग्ज़ाम के समय तैयारी करते हैं, वो कहीं ना कहीं अब की बार वो फार्मूला फिट नहीं बैठा, तो आप क्या राय रखेंगे इस पर? नहीं, मेरे हिसाब से एज एन एडुकेटर, तो जो अगर आप NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर कभी पढ़े होंगे या उसके चर्चा सुने होंगे, तो उस पर ये कहा गया है कि कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। तो कंटिन्यूस असेसमेंट, वो कंटिन्यूस असेसमेंट ही आगे का जो नॉर्म्स है, ये नॉट ओनली K-12 बट K-21 एजुकेशन में ये होने वाला है, ताकि हम ये प्रिपेयर्ड रहें कि अब किसी भी टाइम में कोई भी पैंडेमिक आ सकता है, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आ सकते हैं। तो उसके लिए हम ये अच्छा टेस्टिंग ग्राउंड था कि हम अभी प्रिपेयर्ड हैं। तो चैलेंजेस भले ही होगा, लेकिन कंटिन्यूटी इसमें है। जो बच्चा जैसे फर्स्ट यूनिट टेस्ट या फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट जिसको हम कहते हैं और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कंटिन्यूटी के साथ अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन किया और वो बच्चे ने एक्सेल किया, तो ये इस ग्राउंड फॉर सॉर्ट ऑफ नेक्स्ट लेवल पे जो हम जाएंगे आगे, जो नेक्स्ट आने वाला है, जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन जो चेंज होने वाला है, जो मोस्ट प्रोबेबली 2022 से स्टार्ट होने वाला है, जिसका हम इसको प्लिंथ लेवल कह सकते हैं, तो ये हमने डाल दिया है। ये एक टेस्टिंग ग्राउंड, ये एक
ब्लेजिंग इन डिस्गाइज है ये हमारे लिए। कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी, ऐसी आपने दो बातें कही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करके इसको बताया गया है। और अब की बार 10वीं के परीक्षाओं में हमने देखा, खासकर 12वीं में भी हमने देखा कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम 40-30-30 करके जो वैल्यूशन हुई है बच्चों की, उसमें ये कहीं ना कहीं बाहर आए हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स को, जहाँ स्टूडेंट्स को अवेयर करने की कोशिश है, जहाँ उनको इस बात के बारे में बताने की कोशिश है कि हाँ कंटिन्यूटी ही मैटर करती है, बल्कि लास्ट के समय में जो आप कोटा कहते हैं हम लोकली, या हम क्रैमिंग कहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए स्कूल की तरफ से या कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है? नहीं, क्रैमिंग के तो हम बिल्कुल ही खिलाफ़ हैं। आपने जैसे हमारे जो टॉपर, स्कूल टॉपर है, उसको आपने सुना तो उसने ये बोला कि स्टार्टिंग से लेकर कंसिस्टेंसी, उसके डे 1 से पढ़ना और कंटिन्यूसली 2 to 3 आवर्स और 4 आवर्स ऑफ स्टडी इज़ मोर देन एनफ। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत कोई चीज़, और कम्युनिकेट हम छोटे से भी कोई कम्युनिकेशन बोर्ड से आता था या कहीं और से हमें पता चलता था तो हमने पेरेंट्स के साथ शेयर किया। तो मैं यहाँ पर जैसे विहान की मदर ने अभी बताया कि स्कूल के है और लोग क्रेडिट दिया उन्होंने, बट मैं यहाँ पर पर्सनली ये क्रेडिट दूंगा कि पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मायने रखते हैं। हम तो करते हैं, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना और उसको ये करना है कि स्कूल जो कर रहा है वो आप ही के सभी के भलाई के लिए कर रहा है। हम किसी के रिजल्ट ख़राब नहीं करना चाहते हैं। विहान अगर 99.5 का है तो हम ये कोशिश करेंगे, अगर उसके पोटेंशियल है तो 100% उसको मिलना चाहिए। हमारे जो सेकंड थर्ड टॉपर्स हैं, जो अर्घ रैना है, रुशील अमला है और दिव्यवीर सिंह मनहास है, तो हम सबको चाहेंगे कि अगर ये और भी 5% इनका होता तो हमारे अगर सारे बच्चे 99.5 या 100 में आ जाते, ये 5-6 लोग, तो हमारे लिए तो ये गर्व की बात होती। तो लेकिन ये है कि हर बच्चे का, हम ये भी नहीं क्लेम कर सकते कि सारे बच्चे एक ही तरह के हैं। सबका जो फोर्टे है, जो उसका कॉम्पिटेंसी है, सारी चीज़ में एकेडमिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। विहान जैसे वो खाली एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके जो 21st सेंचुरी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है वो कम्युनिकेशन और कोलाब्रेशन, और मैं मानता हूँ कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21st सेंचुरी स्किल। तो वो ज़्यादा मुझे हमेशा इम्प्रेस करता है देन उसके स्टडीज़। तो मुझे ये मालूम था कि ही इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉय एंड ही वुड डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देयर आर 15,000, मोर देन 15,000 इंजीनियर्स हु आर अनएम्प्लॉयड नाउ, बट देयर आर hundreds of engineers who have even done from not very good institutes, but they are in very high level, very high positions. तो क्यों? कि उनके जो स्किल है वो कम्युनिकेशन है, जो लीडरशिप स्किल है, वो चीज़ें उनके पास है, इसलिए वो बेटर प्लेस्ड है। और IITians, not all IIT, there are many IITians who are teaching in coaching centers, many, and it's a qualification कि आप अगर ex IITian हो तो आप कोचिंग सेंटर में पढ़ाओ, आपका एक्स्ट्रा मिलेगा। बट देन उनका इंजीनियरिंग जो इसके लिए किया था, कंट्रीब्यूशन जो IIT ने मिलियंस रुपीस खर्चा किया, उनको उसका यूज़ ही नहीं हो रहा। तो ये जो स्किल है इसका, या हम ये कोशिश करते हैं कि हर बच्चे में ये स्किल्स, ये सारे बच्चे आप देखेंगे इनका जो को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जैसे MUN के कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, या जो ब्रिटिश काउंसिल के और भी कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, या और भी जो भी इनके वॉट एवर कम्स ऑन देयर वे, वो सारे चीज़ को ये लोग अटेंड करते हैं। ये नहीं खाली बुक पढ़ के किस हिस्ट्री पढ़ना है या फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। दे आर एवर रेडी कि जो भी आता है उनके ऑन द वे, तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये खाली नहीं है कि पढ़ाई की वजह से ये टॉपर लिस्ट में और ये है। एंड स्पेशली आई मीन अगेन आई वुड कंग्रेचुलेट विहान की विहान इज़ रियल ऑलराउंडर आई वुड से, एंड नॉट ओनली हिम, दिस पीपल ऑल्सो लाइक दिव्यवीर सिंह मनहास इज ऑल्सो वेरी गुड ऑरेटर। तो इनका ये जो स्किल्स है, ये कहीं ना कहीं इनको क्राउड से स्टैंड आउट कराएगा, मतलब उनको वो उभर के दूसरे तरह से आएंगे ये। तो विहान विल ऑलवेज मेक ए मार्क, चाहे मैं मतलब हमको ज़रूर ये खबर भी रहे कि वेयर इज़ विहान एंड व्हाट इज़ ही डूइंग, एंड ही मस्ट बी डूइंग बेटर देन अदर पीपल। मैसेज क्या रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, आपकी तरफ से? मेरे तरफ से ये रहेगा कि सबसे पहले कंटिन्यूटी मेंटेन करें। जो स्कूल से, क्योंकि टीचर्स और उनके कोऑर्डिनेटर्स या मैं जो भी हैं, हम ज़्यादातर टच में रहते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि हमारे जो एग्जामिनिंग बोर्ड है वो क्या क्या गाइडलाइंस निकाल रहा है। तो उसी के हिसाब से जो भी हम गाइडलाइंस देते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कराते हैं, तो उसको सीरियसली लें। और जैसे कि हमारे टॉपर ने बताया, विहान ने बताया कि शुरू से आप, जैसे अभी देर नहीं हुआ, अभी सिर्फ अगस्त है,
और अभी इनका 10th क्लास का जो मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा इस साल तो बहुत साइंटिफिकली किया जाएगा। इस साल तो सब हमको उसमें मार्क्स जैसे एग्जामिनेशन हो जाएगा MCQ बेस्ड, हमें तुरंत उसको उसी दिन अपलोड कर देना है। मैं बहुत इससे CBSE को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें जो चीज़ें हमारे जो सब्जेक्टिव एलिमेंट्स के लोग डाउट करते हैं वो हमारे ऊपर ना आए। इस साल काफ़ी इस तरह से है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो डाउट है तो वो ना आए। तो इसलिए आप जो है कंटिन्यूटी मेंटेन करें, टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को और स्कूल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। पेरेंट्स से सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो उनको इतना खाली मॉनिटर करें कि आप जो है वो बच्चा उसको फॉलो कर रहा है। ये थे स्कूल का स्टाफ, प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका ये कहना है कि कोरोना काल के दौरान कुछ तो चैलेंजेस आए, लेकिन स्कूल ने और उनके स्टाफ ने इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कईयों ने MS टीम का सहारा लिया, किसी ने गैप लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि उन्होंने कहा कि उनका मेन फोकस रहा कि बच्चे की स्टडी को कंटिन्यूटी दी जाए, किसी तरीके से उसको तोड़ा ना जाए, उसमें कंसिस्टेंसी लाई जाए, इसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। और तीसरा उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो इस चीज़ को ओवरकम कर सकें, इसके ऊपर उन्होंने खास ध्यान दिया। कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी, ये जो दो अहम चीज़ें हैं जो स्कूल हर एक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताने की कोशिश की कि इसके चलते ही जो उनके छात्र हैं वो टॉप करने में सफल हो सके। आप देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। कैमरामैन काका जी के साथ मैं पंकज खजूरिया, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जय हिंद।